وہی باتیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ان کی حفاظت فرمائی۔ آج کی ہدایت ملنے کے بعد صحراؤں سے یہ پہاڑی علاقوں سے کوئی گائیڈ نہیں، کچھ بھی نہیں، گزرتے ہوئے وہ فلسطین کے راستے سے پھر مکہ مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر مارنا اور پیر زمزم اور کھانے کا آنا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ماڈل میں وہاں پر نظر آئے گا۔ اب نیکسٹ ماڈل میں ادھر آ جاؤ، ادھر آئیے، اندر آئیے، اور اندر چلے جاؤ، مہربانی۔ سامنے ایک ماڈل رکھا ہوا ہے، ایک آزمائش کا ماڈل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے ایسی جگہ پر آئے نہ جہاں پر انسان ہے، نہ چرند، نہ پرند، نہ کھانا، نہ پینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو یہاں پر وادی غیر میں چھوڑا، اور اسی طرح حضرت حاجرہ پانی کے لیے چکر کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ یہ زمزم کا کنواں اور خانہ کعبہ کے تعلق انشاءاللہ نیکسٹ ماڈل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جبل ابی قیس ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی آواز دی، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صباح کر کے کفار مکہ کو اعلان دعوت شروع کی۔ آپ زمزم اور خانہ کعبہ کو نیکسٹ ماڈل میں آپ کو نیکسٹ ماڈل حضرت حاضر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو سلطان وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں پانی موجود تھا، میں درخت موجود تھا۔ اسی دوران اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اپنے پر سے زمین کو مارا تو اچانک چشمہ پھوٹ پڑا جسے ہمیں زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت حاضر علیہ السلام کا ٹینٹ ہے، ان میں اسماعیل علیہ السلام کا گہوارہ ہے، صفا ہے اور مروہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کا کعبہ ہے۔ آئیے بھائی دیکھیے، یہ کعبۃ اللہ ہے، ہمارے نبی پیدا ہونے سے 200 سال پہلے کا کعبہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، ہمارے نبی پیدا ہونے سے 200 سال پہلے کا کعبہ۔ اس کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ یہ قبیلے خزاع والوں کا گھر ہے، یہ ہمارے نبی کے خاندان والوں کا گھر ہے۔ بہت شکریہ۔ اسکین کرتے آگے بڑھے بھائی۔ انگلش یا اردو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ ہے عبداللہ اور بی بی آمینہ کا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ عبداللہ جب 25 برس کے تھے، ان کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ مکہ سے سیریا آتے تھے ان کی تجارت کے لیے۔ جب وہ آ رہے تھے تو وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے یثرب میں قیام کیا۔ قیام کے وقت ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تب محمد نہیں پیدا ہوتے، یا اللہ دنیا کو تیار کرا رہے تھے کہ اپنے آخری نبی کے لیے جزا کریں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے حجی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میرے ساتھیوں، درود کا احترام کیجیے اور آگے بڑھے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس ماڈل کے ذریعے آپ حضرات کو اس دنیا کا سب سے حسین واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ یہ واقعہ عام ہاتھیوں کے ساتھ پیش آیا اسی ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہا کی فوج کو تباہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، صاف اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کی حالت میں خبر ہوئی کہ پوتے کی ولادت ہوئی ہے تو خوشی کے عالم میں آئے، پوتے کو خانہ کعبہ لے کر یہ پرانے زمانے کا خانہ کعبہ، یہاں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا دوسرا نام احمد رکھا۔ یہ دونوں نام تاریخ اور حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شہر مکہ بتایا گیا ہے اور یہ شہر مدینہ ہے، اور یہ مقام ابوا ہے جو کہ مدینے سے 180 کلومیٹر دور ہے۔
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे तो आपकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना उन्हें मदीना ले गई थी ताकि अपने नानिहाल जो कि बनु नज्जार के कबीले में थे उनसे मुलाकात कर पाए। वहाँ थोड़े दिन गुजारने के बाद जब वापसी हुई मक्का की तरफ तो रास्ते में मकाम अबवा में हज़रत बीबी आमिना सख्त बीमार हो गई और अफसोस वहीं उनका इंतकाल हो गया। ये उनकी कब्र मुबारक का मॉडल है। उनके साथ सफ़र में हज़रत उम्मे ऐमन जो कि हज़रत बीबी आमिना की फातिमा थी वो भी मौजूद थी। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला और वापस मक्का ले जाकर दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पर यतीम हो गए थे, यानी दुर्रे यतीम हो गए। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाने के बाद रास्ते में जो वाक़यात पेश आए थे वो सारे वाक़यात को उनके ग़ुलाम ने हज़रत खदीजा को आकर के सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकल का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को कबूल फरमाकर इस जगह पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हड्डी वालों के साथ क्या मामले लगे? मेरे साथियों दरूद का एहतराम कीजिए और आगे बढ़े। बहुत से वाक़यात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात, इस मॉडल के ज़रिए आज मैं आप हज़रात को इस दुनिया का सबसे हसीन वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। यह वाक़या आमुल फ़ील हारियों के साथ पेश आया। उसी साल जब अल्लाह ताला ने अब्रहा की फौज को तबाह किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। ये वो घर है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक, साफ और खतना शुदा पैदा हुए। आपको खबर हुई कि दो दिन की विलादत हुई है तो खुशी के आलम में आए। वो थे वो खाने काबा ले गए। यह पुराने ज़माने का खाने काबा। यहाँ उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। आपकी वालिदा ने आपका दूसरा नाम अहमद रखा, दूसरा नाम अहमद रखा। ये दोनों नाम तारीफ़ से भरे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शहर मक्का बताया गया है और ये शहर मदीना है और ये मकाम अबवा है जो कि मदीने से 180 किलोमीटर दूर है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे तो आपकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना उन्हें मदीना ले गई थी ताकि अपने नानिहाल जो कि बनु नज्जार के कबीले में थे उनसे मुलाकात कर पाए। वहाँ थोड़े दिन गुजारने के बाद जब वापसी हुई मक्का की तरफ तो रास्ते में मकाम अबवा में हज़रत बीबी आमिना सख्त बीमार हो गई और अफसोस वहीं उनका इंतकाल हो गया। ये उनकी कब्र मुबारक का मॉडल है। उनके साथ सफ़र में हज़रत उम्मे ऐमन जो कि हज़रत बीबी आमिना की फातिमा थी वो भी मौजूद थी। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला और वापस मक्का ले जाकर दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पर यतीम हो गए थे, यानी दुर्रे यतीम हो गए। एक उम्मत खतरा का मॉडल है। ये मस्जिद नबवी हुज़ूर इस्लाम के हुक्म मुबारक पर कायम है। तो इसमें अल्लाह के नबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद तकरीबन 650 साल तक इस हुजरे में कोई हुकूमत नहीं था। तो बाद में 678 हिजरी 1279 ईस्वी में कलाउन ने मिस्र के दौर में ये गुम्बद बनाया। लकड़ी का था, इब्तिदा में सफ़ेद था, बाद में कई रंगों में रखा गया। तो आखिरकार 1233 हिजरी 1818 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद सानी ने सब्ज़ रंग दिया और आज तक ये वैसा ही है। अल्लाह के नबी का हुजरा जो 4 कोने का था ये काबे के मुशाबे नहीं होना करके 5 कोने का बनाए। तो 5 इसके बाद ये पर्दा चढ़ाया गया। अब ये ऐसा है जो आप यहाँ मॉडल देख रहे हैं, जो हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मॉडल है। जो पहला कमरा था यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहयात होने की ज़िंदगी में पहला कमरा था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। यह दूसरा कमरा है जहाँ आप पहली खबर देख रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। यहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आराम फरमाते थे।
ये दूसरी खबर जो देखते हैं वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के है, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से इजाज़त मांगी कि वो भी यहाँ दफन किए जाए। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खबर बनाई गई। हाँ, तीसरे कमरे में जो 3 खबर दिख रहे हैं उनमें से एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर है। उन्होंने भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से इजाज़त मांगी कि वो भी यहाँ दफन किए जाए। और यूँ ये हुजरा 3 अज़ीम हस्तियों का मदफन बना। ये हुजरा नहायत छोटा सादा था, दुनिया की सबसे कीमती रूहानी जगह थी। हमें याद दिला दिया है कि असल अज़मत और शान और शौकत में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह के करीब होने में है। जब आप इस मॉडल पर गौर करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोहब्बत और इबादत से भरी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वजह यह है कि गुलाम मस्जिद के मीनार चिराग उतारने के दौरान भाई मिसले को चिराग गिर गई, जिसकी वजह से पूरी मस्जिद जलकर राख हो गई। आग ने तेजी से पूरे हिस्से को लपेट में ले लिया। मस्जिद के दरवाजे, अलमारियाँ और साथ वाली कई कमरे भी जलकर राख बन गए। इसके बाद अल-मुस्तासिम बिल्लाह ने मस्जिद को नई से तामीर करने का हुक्म दिया। ये दौर हमें यह सबक देता है कि बड़े बड़े मुक़द्दस मकामात भी आजमाइश से गुजर सकते हैं, लेकिन ईमान और इत्तेहाद से दोबारा उरूज पा सकते हैं। 100 साल पुरानी मस्जिद है। इसको बनाने में तकरीबन 13 साल लगे। इसकी तामीर के लिए 500 सोने के थैले इस्तेमाल किए गए। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद रास्ते में जो वाक़यात पेश आए थे वो सारे वाक़यात को उनके गुलाम ने हज़रत खदीजा को आकर के सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकट का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को कबूल फरमाकर इस जगह पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। ये अंदर का घर है ना, ये घर में अदा करते और नबूवत का तोहफा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी गार में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला और इसी गार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साइड से आ जाओ, ये साइड से आ जाओ। जो इमारत का मकसद है इस घर के बारे में बताना। घर करम रज़ियल्लाहु ताला का घर है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कुरान करीम और इस्लामी तालीम देते थे। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले 4 सहाबा थे। घर के खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, घर के अली रज़ियल्लाहु ताला, घर के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, घर के ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। ये 4 सहाबा इस्लाम की बुनियाद बने सो। इस सहाबा के ज़रिए दूसरे का इस्लाम पहुँचे सो। 3 साल के बाद अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि खुला इस्लाम की दावत देने को वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुला इस्लाम की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो है इस्लाम की पहली हिजरत का मॉडल है। जब मक्के में सहाबा इकराम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाने लगा तो मक्के से सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। जब कुरैश ने जब देखा इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है तो उन्होंने सहाबा इकराम पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करनी शुरू कर दी। आज बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तख्ती रेत पर लिटाया गया और उनके सीने पर पत्थर रख दिया गया। आज उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जंजीरों से बांध दिया गया मगर वो निकल कर हबशा चले गए। आज अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मार मार कर पेश कर दिया गया। इतनी सख्तियों के बाद आप सब लोग सहाबा को बचा नहीं सकते थे, इसलिए कि अल्लाह ने भी तैयार नहीं की थी। लिहाजा बहुत सारे सहाबा हबशा चले गए कश्तियों के जरिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस घाटी को शब अबी तालिब कहते हैं।
यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वाले बनु हाशिम को 3 साल के लिए बाइकाट कर दिए। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वाले सूखे पत्ते और घास खाकर ज़िंदगी गुजारे। 3 साल के बाद ये बाइकाट ख़त्म हुआ, आप वापस तशरीफ़ लाए। इसके बाद आपने ताइफ का सफ़र किया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह की एक वहदानियत की दावत दी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इस्लाम कर दिया, मजाक उड़ाया, यहाँ से शरीर लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने इतना जोर से पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जिस्म से खून निकलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत इस्लाम आसमान से आए और कहा, अगर आप चाहे तो ये दोनों पहाड़े इन रस्ते पर नाम तबाह कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिया और कहा कि इनकी औलाद ईमान लाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि आगे चले दोनों शरीफ पढ़ते हुए आगे चले दोनों शरीफ पढ़ते हुए आगे चले। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे महाबत की जिनके पास थी और उनसे दूध का से गुजारिश की। उम्मे महाबत बोलती है बकरी बहुत कमज़ोर है, दूध भी नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ते एक बार हाथ में दूध निकालने का उससे, लेकिन एक बार बढ़ता दूध निकलता है वहाँ से मुझे कुछ सरे करके वो दूध पी दी। उम्मे महाबत ये मौका कभी उन्होंने आवाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती इब्राहिम पे समझ होती को घोड़े का आ गया नंबर स्कैन करो देखो इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे तो सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए पीछा किया था। जैसे ही सुराका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया। इतने का सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बशारत दी, सुराका को बशारत दी कि एक ज़माना आएगा कि ईरान के बादशाह के ताज और सुलेमान ने कलमा पहनेगा। तुम रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में उनके ताज और लाए गए लाने के बाद तुम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हाथ में ताज उनके सर पर पहना है, उनके हाथ में पहना उनके सर में ताज पहना है। हाँ हाँ
हाँ जी थोड़ा जल्दी आके बोलना बोला नहीं नहीं छीना बेटा आगे आ जाओ ये जो मॉडल है खिलाफत बनो उमैया के दौर का जैसे आप दोस्त से आप देखते हैं उसके बाद आगे चला आगे चलो हाँ होगा आगे बढ़ो चलो हम इस तरह करें जी हो आने से पहले मैं बेटे तो ज़रा हटो क्या ये म्हणजे मला काय ठीक ये आप सबसे लोग हज़रत मुबारक है ये 4 करी का था काबे के मुशाबे नहीं होना तो 5 करी का बनाए और ये पर्दा है और अतराफ जाली है यहाँ से को देखना वैसा है आपको किसी भी जगह पर्दा जरा था चलता हूँ ज़रा अल्लाह हाँ अम्मी का बुला लेके जाता हूँ हाथ लो सालिक इधर आओ